ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ماشاءاللہ مضبوط ہے لیکن ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں. یہ کرسی آپ کو زیادہ دکھ رہی ہے بہتر دکھائی دے رہا ہے. اسی سے اندازہ لگا لو اوقات اور حیثیت کیا ہے. اس لیے آپ کو نیند آئے نہ آئے مجھے ضرور آ رہی ہے لیکن میں قربان جاؤں آپ حضرات پر. یا شفیع المذنبین ساقی کوثر شافع المحشر سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ بھی اپنا مال قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, میں بھی تیار ہو جاتا ہوں. آپ بھی گھر چھوڑ کر کے یہاں بیٹھ کر بیان سننے کے لیے تیار ہو گئے. آقا کی محبت میں بھی مشقتیں برداشت کرتا ہوا آپ کے سامنے کافی دور سے چلا آیا, چونکہ میں بھی جانتا ہوں کہ اصل محبت نہ تیری ہے نہ میری ہے. آقا سے پیار اصل محبت ہے, آقا سے محبت اصل پیار ہے. یہ محبت دنیا میں بھی کام آ رہی ہے اور قیامت میں بھی کام آئے گی. ساری محبتیں پیچھے ہو جائیں گی. رب کہتا یوم یفر المرء من اخیہ, آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا, اپنی ماں سے بھاگے گا, اپنے باپ سے بھاگے گا, اپنی بیوی سے بھاگے گا, اپنی اولاد سے بھاگے گا. نہیں بھاگے گا تو اللہ کے حبیب سے نہیں بھاگے گا, بلکہ اللہ کے حبیب کے پاس. تو بخاری میں کئی جگہ یہ روایت ہے کہ اللہ کے حبیب کے پاس تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچا جائے گا. آدم کے پاس جایا جائے گا. آدم علیہ السلام فرما دیں گے جاؤ میرے بس کی نہیں آج سفارش کرنا. نوح کے پاس چلے جاؤ, نوح کے پاس آئیں گے منع کر دیں گے. ابراہیم کے پاس جاؤ, ابراہیم منع کر دیں گے. موسیٰ کے پاس جاؤ, وہ منع کریں گے. عیسیٰ کے پاس جاؤ, عیسیٰ فرمائیں گے کہیں نہ جاؤ سوائے ایک جگہ کے, وہ آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم آقا سے نہیں بھاگیں گے, سب سے بھاگ جائیں گے. یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, نہ تو آلود ہو جائے یعنی برباد ہو جائے. بربادی کا مطلب یہ فقیر آپ سے بیان کرتا, بربادی کا مطلب یہ جان والا تو جان برباد, مال والا تو مال برباد, جائیداد والا تو جائیداد
बर्बाद, खेती बाड़ी वाला तो खेती बाड़ी बर्बाद, दुकानों मकानों वाला तो दुकानों मकान बर्बाद। फरमाया बर्बाद हो जाए वो शख्स कि जिसके सामने जनाब अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी आए और वो प्यारे आका पर दरूद पाक का नजराना पेश न करे। मुझे बताए बड़ी वाले बददुआ करने वाले जिब्राइल अमीन हो और आमीन कहने वाले हम सब के आका बल्कि कायनात के आका जनाब अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, तो मेरी और आपकी हलाकत में क्या शक है। कैद कर लिया, कैद से मैं किसी तरह से भाग कर निकला तो एक जगह जंगल बयाबान में पहुंचा। जैसे ही पहुंचा तो सामने देखा शेर खड़ा हुआ है। अब आप जानते हैं शेर का इंसान का कोई मुकाबला तो है नहीं। फरमाते मैंने कहा और शेर बात को समझ ले, मैं कौन हूँ जरा इस बात को समझ ले। कहने लगे मैं सफीना सहाबी रसूल अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज़ाद करदा गुलाम हो। अल्लाह के हबीब का नाम सुनकर के शेर भी तुम हिलाने लगा, यानी मैं आपका हो गया, आप मेरे हो गए। ये भी खड़े हुए थे, ये खड़े खड़े महसूस करने लगे कि पता नहीं क्या कर रहा है। शेर आगे बढ़ा और आगे बढ़ा कि थोड़ा सा डरने लगे, पता नहीं शेर क्यों आ रहा है। शेर ने बड़े प्यार से पंजे से यूं करके किया कि चलो हजरत रास्ता दिखाता हूँ, खड़े क्यों हो। हजरत समझ गए मुझे रास्ता दिखाने के लिए कह रहा है। हजरत साथ चले। अजीब वाक़या पेश आया। अचानक से इधर एक साइड से दूसरे शेर की आवाज आई। इस शेर ने हजरत सफीना को रोका, रोककर उस शेर की तरफ चला गया और उस शेर को दूर दबा करके वापस आया और वापस आकर के फिर लेकर के चला। यानी खुद भी हिफाजत कर रहा था। वो चीज जो लोगों की जान ले लेती है वो हिफाजत करने वाली बन जाती है अगर अल्लाह का खौफ दिल में हो। आज हम हर तरह से डरे हुए हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हयातुस सहाबा नंबर 3 के अंदर मौजूद है। फरमाते हैं कि एक मुहाजिरा औरत हिजरत करके आई, उसके साथ में जवान बेटा भी आया। दोनों ने ईमान कबूल किया। बेटे को मर्दों में भेज दिया गया, औरत को औरतों में भेज दिया गया। अचानक से उस नौजवान लड़के को बीमारी लग गई। ऐसी बीमारी लगी जिसके अंदर उसकी मौत हो गई। अल्लाह के हबीब ने कहा कि जरा उसकी माँ को इत्तला कर दो और उसके बाद में इसका कफन दफन का इंतजाम कर दो। माँ को कहने के लिए एक आदमी गया, उधर से माँ आ रही है, इधर बेटे को चादर ओढ़ा करके सामने बिठा दिया गया। माँ आई, बोली क्या बात है। कहा कि आपका बेटा फौत हो गया है। अचानक से माँ ने देखा, कहने लगी ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा बेटा फौत हो जाए। नहीं मेरा बेटा कोई फौत नहीं हुआ। लोगों ने बताया अम्मा जान सामने पड़ा हुआ है, आपका बेटा मुर्दा है। इतना सुनना था, अम्मा जान ने इस तरह दोनों पैरों को पकड़ करके बैठी, दोनों पैरों को पकड़ करके बैठी और अल्लाह की तरफ निगाह उठा करके कहने लगी, ओ मेरे मौला, मैंने हिजरत की, मैंने पुत्र को छोड़ा, अपने खानदान को छोड़ा, अपने घरबार को छोड़ा, सारे रिश्तेदारों को छोड़ा, सारी कायनात को छोड़कर मैंने ईमान कबूल किया। मेरे ऊपर ऐसा बोझ न डाल जिसको मैं बर्दाश्त ना कर सकूं। इतना कहना था, इसकी ज़बान से निकले अल्फाज अर्श मुअल्ला को जाकर ढक कर देते हैं। इधर से ज़बान से अल्फाज निकले अर्श मुअल्ला पर पहुंचे। बेटे के पैरों में हरकत आ गई। इधर से ये कह रही है, और मेरे मौला तुम लोगों
काम का मौका न दे। इतना कहना था, बेटे ने चादर को अपने हाथ से हटाया, बैठ गया, जिंदा हो गया। आगे रिवायत में लिखा है इसका इंतकाल भी एक जमाने के बाद हुआ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल भी इसके सामने हुआ, विसाल भी इनके सामने हुआ, और खुद उसकी अम्मी जान का इंतकाल भी उसी के सामने हुआ। तब कहीं जाकर के उसका इंतकाल हुआ। मुर्दे जिंदा हो रहे थे, लोगों के सामने बखेरे जाते। और उसके अलावा बाइबल के वर्सेस मैंने कोट की थी, चंद वर्सेस मिलकर के पूरा एक उसलोग कह सकते हैं, उसे आप आयत कह सकते हैं। If you love me, you will obey my commandments. I ask the Father, who will give you another helper. इसके बारे में आपसे बताया जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर है, ज़बान को रोक रही है, हाथ को पकड़ रही है, कलेजा नीचे को बैठ रहा है, क्योंकि लंबा सफर है, जाना भी है, आपका भी ख्याल है। वरना मैं आपके सामने वो सारी बातें जो आपकी चाहत वाली है, ना तस्य बिरती वास्ती यस्से नाम महशिहा, इसकी झलकियां भी दिखाता। एकम ब्रह्म दिव्य नास्ते नहना नास्ते किंचन, एकम अवम आदित्य आपके जलवे आपके सामने दिखाता, आपको बताता योगी युजीव जरमात मानम रहसी इस्तिहा, एकाकी अच्छी दादमा निराशीर परिग्रह में क्या बातें कही गई है। गीता का श्लोक है, इसके अंदर क्या बातें कही गई है। सुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमान मातमानम न तुच्छितम न तु नीचम चेहरा जिनको शौक करम। शायद कुछ प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो गया है, गुस्ताखी की माफी। इसके भी आपको मैं आपके सामने बताता। समम आय श्लोक रीगम धार्यत्र चलम संप्रेष्य नासी कांत्रम दिशचाम वलोकयन, इसकी गहराई आपके सामने बताता। नादस्य प्रतिमास्ती की बातें बताता, एकाकी अच्छी साधना की बातें बताता, उस तरह से प्रवाहों की बातें बताता। मगर क्या करो, ऐसा वक्त अब नहीं है और वक्त की गुंजाइश भी नहीं है, इसलिए इंशाअल्लाह इसको उठा करके मैंने आइंदा बयान के लिए रख दिया। इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा तब आपके सामने बताऊंगा। बस एक बात ही आपके सामने बयान कर दूं, वरना आप कहेंगे वो बात रह गई कि आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक के बारे में जो मैं बताता हूँ, हर बार बताता हूँ, हर बार वो नया होता है। जुलाई 2023 तक का मैं आपको कोट कर देता हूँ, आप नोट कर लें कि प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक 20 अप्रैल 571 ईस्वी एक कौल के मुताबिक, उसके हिसाब से आज इसमें जलसा हुआ था 13 जुलाई 2023 तक 5,30,715 दिन हो चुके हैं। और मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक 20 अप्रैल 571 ईस्वी से लेकर आज के दिन 13 जुलाई 2023 तक 1,27,29,960 घंटे हो चुके हैं। और आगे बात करूं तो आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक 20 अप्रैल 571 ईस्वी से लेकर आज की डेट 13 जुलाई 2023 तक 76,37,97,623 मिनटें हो चुकी हैं। और गड़ी वालों, आगे सबक आपको सुना दूं कि आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक 20 अप्रैल 571 ईस्वी से लेकर आज की डेट जिसमें जलसा मुनक़िद हुआ 13 जुलाई 2023 तक 45 अरब 82 करोड़ 78,57,380 सेकेंड हो चुकी है। लगभग तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेशन करेंगे इंशाअल्लाह 1 सेकेंड का भी फर्क नहीं आएगा। मेरे